Today I am going to teach you chapter 20, conjunctions. The conjunction. A conjunction is a word that joins together sentences, words or group of words in a sentence. As you are aware, the conjunction is a word that join the sentences, words or a group of words. Children, you have already read about conjunctions, so you can easily find out what is conjunction in the sentences. Here examples given. A. I like both papaya and watermelon. B. You can drink juice but avoid tea for a new days. C. The girl is honest but the boy is dishonest. So here in bold color you can see and, but. So these kind of words are called conjunction because they are joining the sentences, sometimes phrases, sometimes words, sometimes clauses. So you can see here so many kinds of conjunctions in this chapter. Children, I have explained conjunctions in class 7th also, and I have uploaded that conjunction topic on my YouTube channel, so I will send a link of that class also. You must go through on that link, then you can easily understand what is conjunction. Here also I am going to explain, so this video also you can see very carefully. Read the following sentences carefully. The conjunctions have been printed in bold, so you can read 1 to 8 sentences. So you can find out bold color words are given here. So these words are called conjunction. Now kinds of conjunction. Here number one, coordinating conjunctions. इसमें coordinating conjunction में you can see only these kind of conjunction will become. You must learn. अगर इस तरह के conjunction आते हैं तो आप इसे coordinating conjunction कहेंगे. Like and, but, or, not, neither, for, yet, still and so. आपको बहुत अच्छे से ये प्रिपेयर करना होगा कि अगर इस तरह के कंजक्शन आपको देखने को मिलेंगे सेंटेंसेस या फिर स्टोरीज या फिर पैरा या फिर वट एवर topic has given, if you see these kind of conjunctions on your topic or sentence, whatever it is given, so you can find out this type of conjunction is called coordinating conjunctions. Like this correlative conjunction, both and, इसमें देखेंगे आप दो कंजक्शन एक साथ मिले हुए हैं, यानी कि बोथ एंड, यानी एक ही सेंटेंस में आपको दो कंजक्शन मिलेंगे. अगर इस तरह के कंजक्शन होंगे तो इसे कोरिलेटिव कंजक्शंस कहते हैं. नाम से ही पता चल रहा है कोरिलेटिव है ना, तो दोनों एक दूसरे को रिलेट करेंगे, दोनों कंजक्शन एक दूसरे को रिलेट करेंगे और एक ही सेंटेंस में दो तरह के कंजक्शन आपको दिखेंगे अलग अलग. तो ये इस तरह के जो कंजक्शन होते हैं वो कोरिलेटिव कंजक्शन कहलाते हैं. लाइक दिस सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. यहाँ पे देखेंगे आप सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बिकॉज, देयरफॉर, व्हाइल, ऑल्दो, दो, व्हेयरएज, व्हेन, अनटिल, अनलेस, बिफोर, आफ्टर एंड इफ. If you can see these kind of conjunction on your topic or sentences or paragraph or story, whatever given, or in your question paper, so these kind of conjunction is called subordinating conjunctions. So यहाँ पे subordinating conjunction की पहचान और भी आसान है. अगर आप ये देखेंगे कि जब कोई दो सेंटेंस या क्लॉज होंगे, क्लॉज तो उसका जो मेन क्लॉज है उसके बाद सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है और सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज को मेन क्लॉज से जोड़ने के लिए हम इस तरह के कंजक्शन का यूज़ करते हैं. मेन क्लॉज और सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज आपको समझना होगा चिल्ड्रेन. इसके लिए आप ये ध्यान दीजिए कि अगर कोई भी सेंटेंस अपनी पूरी मीनिंग अपने आप खुद से बना लेता है तो उसे मेन क्लॉज कहते हैं. मीन्स उसे किसी और सेंटेंस की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए उसे इंडिपेंडेंट कहते हैं. यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज मीन्स which having a complete sense. That sentence is that clause is called main clause or independent clause. और subordinating means जैसे अपना सेंस बताने में या एक्सप्रेस करने में किसी की ज़रूरत हो, यानी दूसरे किसी क्लॉज की उसे ज़रूरत हो. डेट इज़ कॉल्ड सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, क्लॉज. सो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वो होते हैं जो सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज को जोड़ते हैं. अभी हम आगे इसमें आपको एक्सप्लेन करेंगे हाउ यू विल यूज़ सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. सो नंबर 1, कम ऑन,
हेयर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जॉइन टू सिंपल सेंटेंस। पहला जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, इसको रूल कैसे हम फॉलो करेंगे, इसका रूल, इसको लगाने के लिए हमें दो सिंपल सेंटेंस को एक साथ जोड़ना होगा। सिंपल सेंटेंस आप समझ रहे चिल्ड्रेन, जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। मीन्स एक सिंपल सेंटेंस, उसको जोड़ने के लिए हमें कौन से कंजक्शन की ज़रूरत होगी चिल्ड्रेन? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। जैसे सिंपल आप देख सकते हैं एंड, बट, और, नॉट, नाइदर, फॉर, येट, स्टिल एंड सो। एग्जाम्पल ए देखिए, ही इज़ लेजी बट स्मार्ट, है ना। यहाँ सिंपल सेंटेंस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसमें बट लग गया है, ठीक है। तो इसलिए ये कौन सा कंजक्शन कहलाएगा? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। Now you can see children B and C example also, and you can understood that these kind of conjunction will be called coordinating conjunctions. Children come on page number 113, using and to join sentences. यहाँ पे and हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? join करने के लिए दो sentences को। यहाँ पे भी हम देखेंगे हमारा सिंपल सेंटेंस होगा और उसमें हम एंड का यूज़ करेंगे दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए। एंड मीन्स और चिल्ड्रन बट मीन्स क्या होता है? लेकिन। और हिंदी में अगर हम देखेंगे तो एंड मीन्स और। इट इज़ वेरी इजी टू यूज़ एंड कंजक्शन in the sentences. Example A, the boy is a good singer, the boy is a good dancer. एक ही बच्चे की दोनों क्वालिटी है ना, तो इसलिए यहाँ पे हम एंड का यूज़ करके सेंटेंस को शॉर्ट बना देते हैं। द बॉय इज़ अ गुड सिंगर एंड डांसर। लाइक बी, ही लाइक्स टू ईट बर्गर्स, ही लाइक्स टू ड्रिंक टी। यहाँ पे भी एक ही पर्सन की दो चीज़ें बता रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे एंड को लगाकर दोनों सेंटेंस को शॉर्ट करके जोड़ देंगे। नाउ यूजिंग बट टू ज्वाइन सेंटेंसेज, हेयर ऑल्सो यू हैव टू यूज़ बट। एग्जाम्पल ए पहले देख लीजिए कब हम यूज़ करेंगे बट का? व्हेन देयर इज़ अ कंट्रास्ट बिटवीन टू स्टेटमेंट वी ज्वाइन देम बाय यूजिंग बट। जब भी हम दो लोगों का कंट्रास्ट यानी तुलना या फिर कंट्रास्ट या फिर अपोजिट देखेंगे, कुछ भी सेंस आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे बट का यूज़ करेंगे। लाइक ही इज़ स्लो, ही इज़ केयरफुल, तो ही इज़ स्लो बट केयरफुल। यहाँ पे बी, द डिश इज़ डिलीशियस, द डिश इज़ हॉट, तो यहाँ पे बट को लगा के दोनों को जोड़ देंगे और सेंटेंस छोटा हो जाएगा। नाउ यूजिंग और अदरवाइज टू ज्वाइन सेंटेंसेस, वी यूज children, here you can see using or otherwise to join sentences. Here you can see very carefully we use the conjunction or and otherwise to express choice. Whenever we have to choice in sentences, we use or and otherwise. These are the conjunction, and these conjunctions are called coordinating conjunction. Like this, come on now, correlative conjunction here. It is correlative conjunction whenever you see two conjunction joining in one line, or you can see two conjunction in one line, then it is called correlative conjunction. They are used in pairs. How they are used? They are used in pairs. Children now understood? A example, you can see A, Priyank is a good worker as well as a good human being. So as well as, you can see here as well as. This is a conjunction of correlative conjunction. So here like this, they went to the hills and admired the beauty of nature. So here you can see and is given, no, so don't be confused. Here correlative conjunction, it is using like correlative conjunctions. Here conjunctions like correlative conjunction join words, groups of words or sentences. They join similar facts or statement. तो यहाँ पे जब भी सिमिलर फैक्ट्स या स्टेटमेंट होगा तब भी हम कोरिलेटिव का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, दे वेंट टू द हिल्स, वे पहाड़ी पर गए थे, एंड एडमायर्ड द ब्यूटी ऑफ नेचर, और माना था कि मीन्स जो हमारी कुदरत की ब्यूटी, सुंदरता है, प्रकृति की सुंदरता को माना था। तो यहाँ पे क्या है? फैक्ट है ना, तो इसलिए यहाँ पे एंड का इस्तेमाल किया गया है।
नैना इज़ नॉट ओनली वेरी प्राउड बट ऑल्सो वेरी रूड। यहाँ पे दो देखिए कंजक्शन लगे हुए हैं इस सेंटेंस में, तो इट मीन्स दिस इज अ कोरिलेटिव कंजक्शन। लाइक नंबर 3, कम ऑन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस टू अनदर सेंटेंसेस। यहाँ पे क्या होगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कनेक्ट करते हैं वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को किसी और वाक्य से। These include words like because, therefore, while, although, as soon as, though, whereas, when, until, unless, before, that, after and if। ये जितने भी आपको कंजक्शन दिख रहे हैं बोल्ड कलर में, ये जोड़ने का तो काम करते ही हैं, लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस को कंप्लीट भी करते हैं, जोड़ के पूरे एक वाक्य को कंप्लीट करते हैं। जैसे ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, क्योंकि ये जो होते हैं क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, यानी दूसरे वाक्य से डिपेंडेंट होते हैं। तो दोनों वाक्य को मिलाने के लिए, यानी दोनों सेंटेंस को या क्लॉजेस को मिलाने के लिए सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज़ किया जाता है। लाइक यूजिंग कंजक्शंस, यूजिंग कंजक्शन देयरफॉर, बिकॉज और एज टू ज्वाइन सेंटेंसेस। अब हम देखेंगे देयरफॉर, बिकॉज और एज को भी हम ज्वाइन कर रहे हैं। मीन्स अगर हम इन तीनों कंजक्शन का यूज़ कर रहे हैं ज्वाइन करने के लिए सेंटेंसेस। ही इज़ सक्सेसफुल, एग्जाम्पल देखिए चिल्ड्रेन, ही इज़ सक्सेसफुल, ही इज़ कंटेंट। सो यहाँ पे होगा ही इज़ सक्सेसफुल, देयरफॉर ही इज़ कंटेंटेड। ओके, लाइक अगेन बी, यू कैन से चिल्ड्रेन, शी विल नॉट अटेंड द पार्टी, शी इज़ सिक। शी विल नॉट अटेंड द पार्टी बिकॉज शी इज़ सिक। The girl is smiling, she is happy. The girl is smiling as she is happy. Using conjunctions still, although, though to join sentences। यहाँ पे भी देखिए still, although और though को जोड़ने के लिए लगाते हैं। Their house is well decorated, it is not comfortable। तो यहाँ पे हो जाएगा their house is well decorated, still it is not comfortable। Children, see here given using conjunction that suggests condition, if, unless। कंडीशन को दिखाने के लिए if और unless का इस्तेमाल होगा। सो here these conjunction suggest कंडीशन also। जब भी कोई भी कंडीशन या अवस्था होगी तो उसे हम if या unless से दिखाएंगे। लाइक A, he has to apply for the loan, he cannot get it sanctioned। सो या unless he applies for the loan, he cannot get it sanctioned। B, the match finished early, I would reach home on time। If the match finished early, I would reach home on time। यहाँ unless और if कंडीशनल सेंटेंस, या B वाले कंडीशनल सेंटेंस को दिखा रहे हैं, यानी सशर्त वाले सेंटेंस। दूसरा भी यही है, कंडीशन को दिखा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे यूजिंग हम यूज़ करेंगे unless and if। Read the example given below। A, B, C it is given। A, if you observe closely, you will notice the fine embroidery on the fabric। So here, if indicates that the action is likely to occur। और यहाँ पे if this difficult project was completed earlier, I would have taken a short break। Here, if indicates a situation which is not likely to occur। See, if I had worked harder, I would have won the competition। In this sentence, if indicates an action that is impossible to happen। यहाँ पे सशर्त वाले जो sentences हैं इन्हें conditional sentences कहते हैं। आपकी क्लास में अभी ये short में दिए हुए हैं। It will go in detail in class 7th, maybe in class 8th also। So you have to only little bit understand that this conditional sentences we can use if or unless। Like this children, A, B, C, D, E, F, these are the exercises। I will send you answer key, so you have to complete all the chapter। All right children।